A very good afternoon to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So, class, today we all are going to start our new chapter of your civics book, and the name of your chapter is Women Change the World. So, the last chapter of civic is related to girls and boys, that is, growing up as boys and girls, and now this chapter is Women Change the World. Okay, so now how women contributed in revolutionize the world. ठीक है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उनके वर्क को कैसे रिकॉग्नाइज किया गया है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. So now in the previous chapter we saw how women's work in the home is not recognized as work. We also read how doing household work and taking care of family members is a full-time job, and there are no specific hours at which it begins or ends. So in this chapter, we will look at work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than for women. We will also learn about how women struggle for equality. Getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women. This chapter will also briefly trace the different types of efforts made by the women's movement to challenge discrimination in more recent years. Okay, so now in the previous chapter, that is the name of the chapter was growing up as बॉयज एंड गर्ल्स, वी सी हाउ वुमेन्स वर्क, कि कैसे वुमेन का वर्क जो था वो कंसिडर ही नहीं किया जाता था कि वो कोई वर्क है. ठीक है, घर का काम की वो खाना बना रही हैं या घर की सफाई कर रही हैं या फिर फैमिली की केयरिंग कर रही हैं, उसको कोई काम ऐसे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा था कि वो कोई वर्क भी है. और इवन हमने ये भी देखा था कि दैट वुमेन्स वर्क इज टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स इज अ फुल टाइम जॉब. ऐसा तो नहीं है कि आप 8 आवर्स आप फैमिली की केयरिंग करोगे उसके बाद आप केयरिंग नहीं करोगे. नो, taking care of family member is a full-time job, and obviously there is no specific hours at which it begins or ends. So in this chapter we will look at work outside the home, कि जो वुमेन की कंडीशन है वो घर से बाहर कैसी है और वो उनका जो वर्क है घर से बाहर कैसे देखा जाता है. So we will talk about some of the occupations which are seen to be more suitable, which are seen to be, जो लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा suitable है women के लिए as compared to men, या फिर जो men के लिए suitable है women के लिए suitable नहीं है. And after that we will talk about the how different women struggle for equality. हमारे जो सोसाइटी में इक्वालिटी आई है उसके लिए वुमेन ने क्या क्या कैसे कैसे कंट्रीब्यूट किया है, क्या क्या चीजें क्या क्या उन्होंने चीजें देखी हैं. वी विल टॉक अबाउट इट, चाहे वो एजुकेशन में हो, जॉब्स में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वायलेंस में हो, तो कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया है. बहुत सारा ऐसे इक्वालिटी के लिए उन्होंने अपनी लड़ाइयां लड़ी है, प्रोटेस्ट किया है. वी विल टॉक अबाउट इट. इवन हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किया है. So it is just a pretty picture of a girl holding the map, holding the earth. ठीक है, एक पिक्चराइजेशन है जिसमें एक लड़की जो है क्या है, अर्थ को पकड़े हुए है. ठीक है, this picture gives us a very deep like message कि क्या क्या एक लड़की जो है उसने पूरी मदर अर्थ को क्या कर रखा है, एक संभाल के रखा हुआ है, और कितने प्यार से वो केयर कर रही है, कितने प्यार से उसने उसको संभाल के रखा हुआ है. दिस पिक्चर गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज. ओके, सो नाउ दिस इज who does what work. Now who does what work? So in your books you all are able to see some boxes, and before each box there is a term: a farmer, a factory worker, a nurse, a scientist, a pilot, a teacher. These are the 6 boxes. Now draw images of the following. So now close your eyes, and close your eyes everyone. ठीक है, और जैसे ही मैं आपको बोल रही हूँ कि
एक ऑक्यूपेशन का नाम ले रही हूँ या एक नाम ले रही हूँ और उस नाम को सुनते ही आपके जो माइंड में या फिर आपको क्या इमेजिन कर रहे हो, एक गर्ल फिगर इमेजिन कर रहे हो कि एक बॉय फिगर इमेजिन कर रहे हो, आपको जस्ट वो उस बॉक्स में, वैसे तो आपको ड्रॉ करना है, दिस इज योर होमवर्क, दिस विल बी योर होमवर्क कि आप ड्रॉ करके रखेंगे कल। अभी के लिए आप जस्ट लिख लीजिए कि आपको मैन फिगर मैन दिख रहा है कि बॉय आप इमेजिन कर रहे हो। अ फार्मर, यस, अ फार्मर, एक फार्मर का नाम सुनते ही आपको मैन ज्यादा दिखने, मैन आपके इमेजिनरी में आ रहा है कि एक वुमेन आ रही है, लिख लीजिए, ठीक है। आफ्टर दैट अ फैक्ट्री वर्कर, अ फैक्ट्री वर्कर, एक फैक्ट्री में, एक इंडस्ट्री में काम करने वाला वर्कर, फीमेल और मेल। आफ्टर दैट अ नर्स, a nurse, a scientist, a scientist, a pilot, a pilot, a teacher, a teacher. Yes, so I suppose you all have written those terms for those terms, men or women, for these occupations की एक फार्मर को देख के, एक फैक्ट्री वर्कर, एक नर्स, एक टीचर, पायलट, साइंटिस्ट को सुनते ही, ये टर्म सुनते ही आपके माइंड में, आपके विजन में एक फीमेल फिगर आ रहा है कि एक मेल फिगर आ रहा है, ठीक है। सो नाउ टेल मी अबाउट योर शेयरिंग्स, ठीक है। फार्मर, आपको क्या करना है, अगर फार्मर फिगर के लिए अगर आपके माइंड में मेल फिगर आया है तो जस्ट गिव मी द थंब, जस्ट रेज द हैंड। मेल फिगर आया है तो कितने लोगों, कितने बच्चों के इमेजिनेशन में, माइंड में मेल फिगर आया है? 1 2 3। एंड व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू? फीमेल फिगर? यस, मेल फिगर 4। ओके, ऐश्वर्य 5। And what about rest of you? Bhavya, Devanshi, Jayesh, Rakshit. Okay, so out of 10 students, 5 students, 6 students जो हैं वो क्या है, वो मेल फिगर है, और 4 students जो हैं वो क्या है, उनके माइंड में फीमेल फिगर आया। ओके, लोअर डाउन योर हैंड्स। अ फैक्ट्री वर्कर, अब फैक्ट्री वर्कर सुनते ही मेल फिगर कितने बच्चों के माइंड में आया? मेल फिगर, जस्ट गिव मी द थम्स, जस्ट डू रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स मेल फिगर के लिए। ओके, मेल फिगर के लिए 7 स्टूडेंट्स। ओके, ओके, 7 फैक्ट्री वर्कर में मेल फिगर है और 3 जो है वो फीमेल फिगर है। ओके, अ नर्स, फीमेल फिगर किसके माइंड में आया है? फीमेल फिगर, नर्स के लिए फीमेल फिगर किसके माइंड में आया है? यस, प्लीज डू रेज योर हैंड्स अगर आपके माइंड में एक नर्स का नाम सुनते ही एक फीमेल फिगर अगर आई है। यस, ओके, 8 स्टूडेंट्स जो है उनके माइंड में नर्स आया। ओके, अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट सुनते ही मेल फिगर कितना, फीमेल फिगर कितने के माइंड में आया है? फीमेल फिगर, फीमेल फिगर कितनों के माइंड में आया? फीमेल फिगर। ओके, दैट्स नाइस, 6 स्टूडेंट्स, गुड। पायलट, पायलट सुनते ही कितने बच्चों के माइंड में फीमेल फिगर आया है? पायलट, फीमेल फिगर कितने बच्चों के माइंड में आया है पायलट सुनते ही? ओके, 5। टीचर, टीचर सुनते ही फीमेल फिगर कितने बच्चों के दिमाग में आया? टीचर सुनते ही फीमेल फिगर। ओके, 8 9 स्टूडेंट्स जो हैं वो फीमेल फिगर के लिए टीचर बोल रही है। ओके ओके ओके, गुड। ओके, सो क्लास अभी हमने देखा कि
कुछ इमेजेस जो हैं, जैसे टीचर की इमेज में फीमेल फिगर्स ज्यादा थे, मेल फिगर्स कम थे। फार्मर के टाइम पे क्या है, मेल इमेजेस ज्यादा थी, फीमेल कम थी। फैक्ट्री वर्कर में भी सिमिलरली मेल इमेजेस ज्यादा थी, फीमेल फिगर्स कम थे। नर्स में हमने देखा कि नर्स फीमेल फिगर्स ज्यादा थे और मेल फिगर्स कम थे। साइंटिस्ट में हमने देखा इक्वली देखा कि फीमेल और मेल इक्वली देखा। पायलट में भी हमने देखा इक्वल सा देखा। ठीक है, सो नाउ टाइम इज चेंजिंग, बट वही हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये सेम एग्जाम्पल जो है, Rosie ma'am's class has 30 children. She did the same exercise in her class and here is the result. Rosie मैम के क्लास में भी 30 चिल्ड्रन हैं और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी ये सेम एक्सरसाइज की है और उन्होंने ये रिजल्ट देखा। टीचर की कैटेगरी में मेल इमेजेस जो है 5 और फीमेल इमेजेस 25। देखो फीमेल इमेजेस ज्यादा देखने को मिली। फार्मर 30 मेल इमेजेस एंड फीमेल के लिए 0। फैक्ट्री वर्कर के लिए 25 मेल इमेजेस, फीमेल इमेजेस 5। नर्स मेल इमेजेस 0, फीमेल इमेजेस 30। साइंटिस्ट 25 मेल इमेजेस एंड 5 फीमेल इमेजेस। पायलट 27 मेल इमेजेस एंड फीमेल इमेजेस ओनली 3। तो इस टेबल से हमें क्या पता चल रहा है कि ऐसे कुछ वर्क्स ऐसे हैं जहां पे हम खाली क्या कर रहे हैं, हम एक फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ही दे रहे हैं, और कुछ वर्क्स ऐसे हैं जहां पे हम खाली मेल इमेज को ही इमेजिन कर पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज हम सोसाइटी में उन लोगों को ही देखते हैं ज्यादातर। ठीक है, जैसे कि फार्मर है, फार्मर सुनते ही हमें ना एक जो मेल फिगर ही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि चाहे वो मूवीज के थ्रू हो, चाहे वो फिजिकल हमने लाइव देखा हो, हम फार्मर्स को ज्यादा देखते हैं। टीचर सिमिलरली मेल टीचर्स जो है कंपैरेटिवली क्या होते हैं, हमने देखा है कि कम होते हैं, फीमेल टीचर्स ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज है। बट जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे 2 औरतें जो हैं क्या कर रही हैं, मेज कॉर्न को क्या कर रही है, हार्वेस्टिंग का टाइम है तो कॉर्न निकाल रही है। सो 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क। Their work includes planting, weeding, harvesting, and threshing. Yet, when we think of a farmer, we only think of a man. So now, as you all know, कि out of 100%, 83.6% जो working women के बारे में बात करें, suppose 100 working women हैं और उसमें से 83.6 मतलब 84 वुमेन जो है वो किसमें काम कर रही है, वो फार्मिंग सेक्टर में इंगेज है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज है। उनका वो क्या क्या काम करती है, वो प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, ये सारे काम करती हैं। येट व्हेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ अ मैन। फिर भी हम फार्मर का, जब भी हम फार्मर के बारे में सोचते हैं तो हमें एक मैन फिगर ही हमारे सामने आती है। ठीक है, so now this was the exercise, and now just look at the next topic of this chapter, that is fewer opportunities and rigid expectation. This topic is somehow related to your previous activity only. A lot of children in Rosie ma'am's class drew women as nurses and men as army officers. The reasons they did this is because they feel that outside the home too, women are good at only certain jobs. For example, many people believe that women take better nurses because they are more patient and gentle. This is linked to women's role within the family. Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. So we have seen in that example, we have seen in Rosie ma'am's class, a lot of children drew women as nurses or drew women as teachers. So and men as army officers, farmers or pilot or scientist. ऐसा क्यों हुआ? The reason they did this because they feel that outside the home two women are good at only certain jobs. कि घर से बाहर भी जो women है कुछ स्पेसिफिक जॉब्स ही हैं उनमें अच्छी होती है, जैसे कि वुमेन ज्यादा अच्छी नर्सेस बन सकते हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं? बिकॉज एज कंपेयर टू मैन, जो वुमेन जो है ज्यादा पेशेंट, उनमें बहुत ज्यादा पेशेंस होता है, वो जेंटल होती है, काम होती है, प्यार से बोलती है, दैट्स व्हाई। और जो वुमेन का रोल है फैमिली से लिंक किया गया है, अगेन यहाँ पे केयरिंग से लिंक किया गया है इस काम को।
कि फैमिली की केयर में ज्यादा कंट्रीब्यूशन वुमेन का होता है, और अगेन यहाँ पे इसी चीज को कंट्रीब्यूट किया गया है ना। Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. ऐसा भी माना जाता है कि women are not capable of doing technical things or dealing with the technical things. Boys are like more good in technical things. They have a technical mind, etc. तो ऐसा ये belief है. Okay. Why? Because so many people believe in these stereotypes. Now, what do you mean by stereotypes? Now, just look at the last page of this chapter. Here you look at the glossary of stereotype. When we believed that people belonging to particular groups based on religion, wealth, language are bound to have certain fixed characteristics or can only do a certain type of work, we create a stereotype. देखिए क्या होता है जब कुछ लोग बिलीव करने लग जाते हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप, अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन का कोई पर्सन है एंड इफ अ पर्सन इज बिलोंगिंग हैव सम पर्टिकुलर वेल्थ और ही इज टॉकिंग लाइक पर्टिकुलर लैंग्वेज, देन हम एक ना अपने माइंड में एक प्रीजुडिस करने लग जाते हैं, हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने आप ही है ना क्या करने लग जाते हैं, हम फिक्स करने लग जाते हैं. ठीक है, कि अगर ये हिंदी बोलता है, ऐसा माना जाता है नॉर्मली, हिंदी बोलता है तो ये इंटेलिजेंट नहीं होगा, इंग्लिश बोलता है तो ये इंटेलिजेंट होगा, ये इस रिलीजन का है तो ये तो मीट नहीं खाता होगा, या ये तो मीट खाता होगा, इसके पास इतनी वेल्थ है तो ये तो बहुत अपनी शादी में बहुत खर्चा करेगा. तो ये हम क्या करने लग जाते हैं, खुद एक स्टीरियोटाइप हम अपने माइंड में खुद ही प्रीजुडिसेस करने लग जाते हैं, और इसी प्रीजुडिसेस से हम क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं. एंड इन दिस चैप्टर we saw how boys and girls are made to take certain subjects not because he or she has an aptitude for it, but because they are either boys or girls. Stereotypes prevent us from looking at people as unique individuals. अब क्या होता है इस चैप्टर में, हम क्या देख रहे हैं, हम स्टीरियोटाइप का देख रहे हैं कि कैसे गर्ल्स और बॉयज जो है उनको ऐसे फोर्स किया जाता है कि गर्ल्स है तो वो आर्ट्स लेंगी, होम साइंस लेगी, ठीक है, बॉयज हैं तो वो साइंस लेंगे, वो इंजीनियर्स बनेंगे, वो डॉक्टर्स बनेंगे. इसलिए नहीं कि क्योंकि वो उनके अंदर दिमाग नहीं है या वो इंटेलिजेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज दे आर गर्ल्स और बॉयज, इसलिए उनको क्या, जस्ट बिकॉज दे आर आइदर बॉयज और गर्ल्स, इसलिए उनको क्या किया गया कि वो ये चूज कर रहे हैं कि हमने सर्टेन सब्जेक्ट साइंस लिया, मैथ्स लिया है, हमने गर्ल्स ने आर्ट्स ली है. तो स्टीरियोटाइप से क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल्स की यूनिकनेस होती है, ठीक है, एक हर एक इंडिविजुअल ने, गॉड ने हम सबको बनाया और हर एक के अंदर एक खूबी डाली है, ठीक है. इट इज आवर लाइक it is our responsibility or you can say it is on us कि हम अपनी ये जो यूनिकनेस है, हमारी जो भगवान ने हमें जो खूबी है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. some people are good in craft, some people are good in like science, some people are good in maths, sports, cooking, ये सारी चीजों में कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं. तो ये हमारी यूनिकनेस होती है, ठीक है. we all have some uniqueness in ourselves and it is our duty to find out. It is it is us who can find his or her own uniqueness. Okay, so now sorry. So because so many people believe in these stereotypes, ये stereotypes ही create करते हैं ना कि लड़का है तो ये सब्जेक्ट लेगा, लड़का है तो गाड़ी से खेलेगा, लड़की है तो डॉल से खेलेगी, लड़का है तो ब्लू कलर पहनेगा, लड़की है तो पिंक कलर की ड्रेस पहनेगी. ये stereotype जो है लोग create करते हैं. Many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers. Obviously, आपने मूवीज में देखा होगा या फिर आपने अपने सराउंडिंग्स में भी देखा होगा कि बॉयज को जितना सपोर्ट मिलता है कंपैरेटिवली, उतना गर्ल्स को नहीं मिल पाता, स्पेशली डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बन रहे हैं तो, या कोई करियर पर्सपेक्टिव है उनका. तो in most families, once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriages as their main aim in life.
एंड स्पेशली इन इंडिया, इन मोस्ट फैमिलीज क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो गर्ल्स एक बार स्कूल फिनिश हो जाती है, ठीक है, या कॉलेज फिनिश हो गया, उसके बाद है ना उनको इनकरेज किया जाता है कि उनकी लाइफ में जो मेन एम है वो शादी है और उनकी लाइफ में, और शादी के अलावा कुछ नहीं है, उनको ऐसा फील करवाया जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, which is also a stereotype. So now there is an example of stereotype. Just look at this example, this green box. Breaking stereotypes. इंजन ड्राइवर्स आर मैन, दिस इज ऑल्सो ए स्टीरियोटाइप कि इंजन ड्राइवर्स हैं जो रेल को चलाएंगे वो मैन ही हो सकते हैं. But 27-year-old Lakshmi Lakra from a poor tribal family in Jharkhand has begun to change things. She is the first woman engineer for Northern Railways. Lakshmi's parents are not literate. Literate means someone who is able to read or write any one language. ठीक है, किसी भी एक लैंग्वेज को भी अगर कोई इंसान पढ़ लिख सकता है तो उसको हम लिटरेट बोलते हैं, ठीक है. बट लक्ष्मी के जो पेरेंट्स हैं वो लिटरेट नहीं है, वो इलिटरेट है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है. But they struggled and overcame many hardships to make their children got an education. Lakshmi studied in a government school. Even in school, Lakshmi helped with the housework and did odd jobs. She studied hard and did well and then went on to get a diploma in electronics. She often took the railway board exam and passed it on her first attempt. So now Lakshmi Lakra, she is 27 years, she was 27 years old, and she belongs फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली, झारखंड की एक ट्राइबल फैमिली से वो बिलोंग करती हैं. और जो नॉर्दर्न रेलवेज हैं उसकी पहली वुमेन है लक्ष्मी लाकरा, इंजन ड्राइवर फर्स्ट इंजन ड्राइवर है वो नॉर्दर्न, फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर है वो नॉर्दर्न रेलवेज की. लक्ष्मी के माता पिता जो हैं दे आर नॉट सो लिटरेट, they are not literate at all, but they struggled a lot, they overcame so many hardships, problems to make sure their children got an education, कि उनके बच्चे पढ़ सके, उसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत प्रॉब्लम्स को फेस किया. Lakshmi studied in a government school, and even in school also Lakshmi helped with the housework and did odd jobs. School के साथ साथ वो odd jobs भी करती थी, घर में भी help करती थी. She then took the railway, she studied hard and did well and then got a diploma in electronics. उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया और आफ्टर दैट उसने रेलवे बोर्ड एग्जाम्स दिए और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसे क्लियर कर लिया. लक्ष्मी सेज, आई लव challenges and the moment somebody says it is not for girls, I make sure I go ahead and do it. Lakshmi has had to do this several times in her life. When she wanted to take electronics, when she rode motorcycles at the polytechnic, and when she decided to become an engine driver. So Lakshmi का कहना है, Lakshmi said, she quoted, I love challenges, challenges, and the moment somebody says it is not for girls, I make sure I go ahead and do it. कि मेरे को challenges लेना बहुत ही ज्यादा पसंद है, और जब कभी भी कोई बोलता था ना कि ये काम लड़कियों के लिए नहीं है, तो मैं उस काम को तो मैं करके ही रहती थी. लक्ष्मी ने अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसे चैलेंजेस फेस किए और बहुत बार ऐसा किया भी है. जब उसको इलेक्ट्रॉनिक्स लेना था, सबने उसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स लड़कियां नहीं लेती है, इंजन ड्राइवर लड़कियां नहीं बनती हैं, या फिर मोटरसाइकिल लड़कियां नहीं चलाती है, तो वो ये सारे काम कर रही थी जब उसको मना किया गया. और वो उसको ये सारे काम करना पसंद था कि अगर किसी ने उसे मना कर दिया तो वो ये इस काम को करके दिखाती थी. सो हर फिलॉसफी इज सिंपल, उसकी जो एथिक्स थे, मॉरल वैल्यू जो वैल्यू थी बहुत ही सिंपल थी. क्या थी? as long as I am having fun without harming anyone, as long as I am doing well and helping my parents, why should I not lead a life of my choice?
अब लक्ष्मी का कहना था कि मेरी लाइफ में मतलब मैं किसी को आई एम एंजॉइंग माय वर्क, आई एम नॉट हार्मिंग एनीवन एंड इवन आई एम हेल्पिंग माय पेरेंट्स एंड इवन आई एम डूइंग वेरी वेल, सो व्हाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफस्टाइल ऑफ माय चॉइस। जो चॉइस मतलब जिस काम में मुझे मजा आ रहा है, जो मैं ऐसी लाइफस्टाइल जी लूं जिससे मेरे को मैं किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकती हूँ, मैं अपनी लाइफस्टाइल अपने मन से जी सकती हूँ, तो मैं ऐसा काम क्यों नहीं करूँ। सो दिस इज द कॉल्ड ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। ऐसा पहले माना जाता था कि जो ये क्या बोलते हैं, ये लड़कियों का काम नहीं है इंजन ड्राइवर बनना, बट लक्ष्मी लाखरा ने ये स्टीरियोटाइप को तोड़ा। सो नाउ ऑन पेज नंबर 58, it is important to understand that we live in a society in which all children face pressures from the world around them. Sometimes these come in the form of demands from adults. At other times, they can just be because of unfair teasing by our own friends. Boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary. They are also teased and bullied if they do not behave like other boys. You may remember that in your class 6th book, you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others. So obviously, it becomes very much important to comprehend that, understand that we live in a society जहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, they consciously, unconsciously, directly, indirectly वो pressures, ठीक है, अपने जितने भी सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं, सोसाइटी में लोग रहते हैं, इवन उनके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली, सब कॉन्शियसली उनको प्रेशर किया जाता है। उनको समटाइम्स उनको एडल्ट्स जो हैं, जितने भी आप पेरेंट्स बोल लीजिए, वो क्या करते हैं, उनसे डिमांड करते हैं कि नहीं आपको बड़े होके ये बनना है, ठीक है, ये मेरी इच्छा है कि तुम बड़े होके ये बनोगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं या फिर आपके जो क्लासमेट्स होते हैं, वो टीजिंग करने लग जाते हैं कि अगर आपने कभी कोई किसी बॉय ने पिंक शर्ट पहन लिया तो आपका फ्रेंड आपको टीज कर रहा है, ये तो लड़कियों के जैसे कपड़े पहन रहा है, तो अनफेयर टीजिंग के वजह से, ठीक है, भी क्या होता है, हम ऐसे काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं, या फिर हम ऐसे काम करना छोड़ देते हैं जो हमें पसंद होता है, ठीक है। सो इवन बॉयज को क्या किया जाता है, नॉर्मली वी सी दिस इन आवर सोसाइटी, बॉयज आर प्रेशराइज्ड टू like think about those types of jobs which pay them a very good salary. So they are teased, bullied, and if they do not behave like other boys, कि अगर जो दूसरे बॉयज जैसा बिहेव करते हैं, अगर वैसा बिहेव नहीं करते तो उनको काफी बुली किया जाता है, उनको टीज किया जाता है, उनको मतलब एम्बैरस किया जाता है। इवन आपने क्लास 6 में या फिर आपकी लाइफ में भी आपके साथ हुआ होगा, स्पेशली जो बॉयज हैं, आपको बोला गया होगा कि तुम यू आर अ ब्रेव बॉय, बॉयज डू नॉट क्राई, या बॉयज किसी के सामने नहीं रोते हैं। बट आई थिंक दिस इज द strength of somebody. If you are able to show your emotions, you are strong enough to show your emotions. अगर आप रो रहे हो, ठीक है, it's a normal, भगवान ने हमें बनाया है, भगवान ने गॉड ने हमें ये चीज भी दी है ना कि यू हैव दिस राइट, अगर आपको रोना है, आपको रोने का मन कर रहा है, आप रो सकते हो। if you really wanted to show your emotions, you are showing your strength, not your weakness. So it is, according to me, it is not the symbol of weakness, it is the symbol of your strength, how brave you are able to show your emotions, okay। but in families, most of the families we see कि ऐसे stereotypes और ऐसी चीजें हमें देखने को मिलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो प्रेशर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो क्लास, this is all about today, and just look at this conversation section, go through it, read it, and read till page number 58, and if you face any problem, do let me know. Thank you so much for joining the class, and your homework is you have to draw images on page number 55, ठीक है। Accordingly you have to draw the images of the following: a farmer, factory worker, whatever you think, कौन होना चाहिए, मेल और फीमेल, and after that read this conversation
ठीक है, we will talk about this conversation tomorrow. Okay, so bye bye, take care, bye bye, we will meet in our next class.